ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। In our Swadhyay, weekly Swadhyay of Sri Swarup Sambodhan Granth, we had a break, I think almost about say 3 weeks, right, because of the Diwali program here in India as well as at JCGB. And then there was one weekend where I was not available because of an important community issue here in Pune. So if you recall, last time we had talked about two out of the 3 Ratnatrayas, we had covered 2 Ratnatraya, 2 Ratnas, which is the Samyak Darshan and the Samyak Jnana. Shlok number 11 on Samyak Darshan, Shlok number 12 on Samyak Jnana. Okay? And after that we went into a break. So today we are going to begin discussing the third jewel or the third Ratna, which is called Samyak Charitra. Right? Everybody has heard the term Samyak Charitra, and lot of granthas, our scriptures describe the Samyak Charitra, right? And there are different ways in which Charitra also has been explained in the Agam. So we are going to keep our focus on Swarup Sambodhan and specifically what Acharya Aklank Deva is going to state in terms of what is Samyak Charitra. Samyak Charitra could be defined as rational conduct. Some people call it the right conduct, right? The right faith, right knowledge, and right conduct. And some call it the rational. Instead of right, they call it the rational. So let's stick with rational conduct. And if we can turn our attention to Shlok 13, 1-3, right? This is where the nature and the description of Samyak Charitra is found. This is talked about in 2 shlokas. If you recall correctly, up until this time, we were talking about the soul substance, right? And soul substance has been described from the point of view of Anekanta, multiplicity of views, right? Not one-sided view, the multiplicity of views of how the soul entity has been described in the Agam. And after that sub-chapter is over, we are talking about the 3 jewels, the Ratnatrayas. And the remaining section of this Grantha now that Samyak Darshan has been described, Samyak Jnana has been described, the primary motive here is to describe how to attain your own self.
i.e. through Samyak Charitra. So all of the remaining gathas, Acharya Deva is going to talk about the attainment of the self through Samyak Charitra. Okay? So with that background, let's go to Shlok 13 that you see on your screen. Yeah. तो देखिए यहाँ पे आचार्य अक्लंक देव, महानवादी आचार्य अक्लंक देव क्या कहते हैं यहाँ पे, दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु स्थिरमालंबन यद्वा माध्यस्थम सुख दुःखयोः. श्लोक 14 साथ में जाएगा इसके, एंड वी विल टेक दैट एज वेल. हियर Acharya Deva says further what charitra is. Jnataha drushtaham sukhe dukhe na chaparaha itidam bhavanar dardhyam charitram athava matam. This is Shlok 14. पहले का जो था वो 13 वाला था. तो देखो यहाँ शुरुआत होती है चारित्र की, है ना. तो अब यहाँ आचार्य देव समझाते हैं भाई कि चारित्र किसे कहा हुआ है. सम्यक चारित्र, जब हम चारित्र शब्द का उपयोग करेंगे तो वो सम्यक तो सहित ही जान लेना, है ना, क्योंकि सम्यक से रहित चारित्र जो है वो मिथ्या चारित्र की श्रेणी में जाता है. और जब मिथ्या चारित्र की बात आएगी तो आगम के भीतर उसको मिथ्या चारित्र के नाम से पुकारा जाएगा. तो यहाँ चारित्र यानी सम्यक चारित्र, अर्थात दर्शन और ज्ञान पूर्वक होने वाला. इसीलिए यहाँ पे क्या कहा, दर्शन ज्ञान, पहले 2 शब्द इसीलिए रख दिए यहाँ आचार्य देव ने, उसी को बतलाने के लिए श्लोक 13 में. तो क्या कह रहे हैं, सम्यक चारित्र का धारी व्यक्ति कौन है. तो यहाँ कह रहे हैं दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु, अर्थात जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय में, क्या, उत्तरोत्तर भाविषु, उन पर्यायों में उत्तरोत्तर रूप से भावों को करते हुए, स्थिरमालंबम, उसमें जिनको दृढ़ता प्राप्त हुई है, अर्थात जिसमें वे स्थिर हो गए हैं, उनके यहां कहते हैं यद्वा, यत, जो माध्यस्थम, जो माध्यस्थ भाव का होना होता है, किसमें, तो कहते हैं सुख दुःखयोः, सुख और दुख के भीतर माध्यस्थ भाव को प्राप्त होना चारित्र कहा हुआ है. और इसकी एक बहुत जबरदस्त कंडीशन बताई है. क्या है कंडीशन, यही कंडीशन अगर आपको याद होगा तो हमने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ का स्वाध्याय किया था. उसमें भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत ही विशद रूप से सम्यक दर्शन और ज्ञान की चर्चा की थी. और पश्चात में क्योंकि वो चारित्र का ही ग्रंथ था, फिर अष्टमूल गुणों से चारित्र की वहाँ पे शुरुआत की हुई थी. और उसी ग्रंथ के भीतर आचार्य देव ने कहा हुआ था कि जिनकी धारणा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित वस्तु तत्व में, अर्थात तत्वज्ञान में विशेष रूप से स्थिरता को प्राप्त हैं, अर्थात क्या, अर्थात ये है कि जिनका सम्यक दर्शन दृढ़ है. दृढ़ है मतलब क्या, जो ऐसा है जो चलायमान नहीं होता है. आजकल साइंस को फॉलो करने के मार्ग पर जो लगे हुए हैं, उनका क्या है, वे साइंस की कोई चीज़ को बता देते हैं, कोई फैक्ट को बता देते हैं, कोई चीज़ को दिखा देते हैं और बोलते हैं यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, आप ये मानते हो, या फिर पहले मैं ऐसा माना था लेकिन अब साइंस इवॉल्व हो रहा है और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं. और उसके कारण जिनमें जिनेन्द्र देव कथित वस्तु तत्व में श्रद्धान नहीं है,
उनका कोई मत बन नहीं पाता, अर्थात उनकी श्रद्धा की कोई भी भूमिका नहीं बन पाती। इसका मतलब क्या है? उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ने अगर चारित्र को स्वीकारा तो वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। भले वो बड़े व्रतों का पालक हो, व्रतों को पालता हो, बहुत कुछ खाने पीने के बारे में उसने संयम को रखा हो, रात्रि भोजन का त्याग किया हो और कंदमूल का भी त्याग किया हो, और इससे अनेक बड़े बड़े नियम जो व्रती लोग लेते हैं वो लिया हो उसने, लेकिन श्रद्धा के आलोक के भीतर अगर उसकी कंपायमान अवस्था है तो आचार्य देव कहते हैं वह सम्यक चारित्र का प्राप्त करने के लिए उसके पास पात्रता नहीं है। आई बात समझ में? बहुत गंभीर बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि इसीलिए पहले कहा कि देखो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो अपने को उस ग्रंथ में यह समझाया। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का काल जो है, इट वॉज द 11th century AD when he wrote that, between 10th and 11th. Okay? आचार्य अकलंक देवा whose scripture we are studying, उनका काल कितना था? 5वीं शताब्दी के थे, 5वीं 6वीं शताब्दी, मतलब 500-600 साल के बाद जिन्होंने ग्रंथ लिखा उन्होंने भी इसी का अनुकरण किया हुआ है। और इन्होंने पूर्व में ग्रंथ लिखा तो ये क्या कह रहे हैं? जो दर्शन और ज्ञान में उत्तर रूपी पर्यायों में जिनको दृढ़ता प्राप्त है, दृढ़ता प्राप्त है मतलब जो स्थिर हो चुके हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सच्ची वाणी है, अगर मेरा कल्याण होने वाला है तो उसी के वाणी को फॉलो करके मेरा कल्याण होने वाला है, इस जाति की दृढ़ता और उस दृढ़ता के कारण विशेष सम्यक ज्ञान का आलंबन करना, ऐसे लोगों के जो ऐसे विचार बनते हैं, ऐसे चीज़ों में जो स्थित हैं, तो कहते हैं उनके लिए सम्यक चारित्र क्या है? माध्यस्थम सुख दुखयो। उनको माध्यस्थ भाव में प्राप्त वे हो सकते हैं क्योंकि उनको दर्शन और ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त है और इसी से सम्यक चारित्र होता है। तो देखो सम्यक चारित्र की परिभाषा जो है अपन समझ रहे हैं, अब इसको यहीं पे अपन रखते हैं क्योंकि आगे सम्यक चारित्र इतना ही है क्या? तो सम्यक चारित्र के अनेक प्रकार बताए हैं, अपन देखेंगे उनको। तो 14 के भीतर इसी सम्यक चारित्र को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये दोनों गाथाएं जो है ना वो एक साथ आई हुई हैं। इस ग्रंथ के भीतर जहां आप देख रहे हैं उसको अलग अलग बताया है, लेकिन वो दोनों ही युगल रूप में आई हैं। युगल रूप मीन्स दे आर अ कपलेट, दे आर टुगेदर। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं? अब चारित्र और कैसा है? क्योंकि पूर्व में कहा माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है समता रूपी परिणाम। याद रखना, बोलने में बहुत इजी है, हम तो समता रखते हैं, हम समता रख रहे हैं, हमको राग द्वेष नहीं है, ये सिर्फ मात्र बोलने की बातें हैं। एक्चुअल समता नाम की चीज जो है ना बड़ी दुर्लभ है जीवन के भीतर, और बड़े ही कम भाग्यवान जीवों के पास में आती है वो समता। बोलने से समता नहीं होती है। मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, हम मध्यस्थ भाव रखते हैं, हम समता भाव रखते हैं। भावना रखो, भावना अच्छी बात है, भावना रखना और उस रूप परिणमन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। टू एक्चुअली अप्लाई इन प्रैक्टिकलिटी एंड टू लिव एट दैट लेवल इज वेरी डिफरेंट देन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको लेके वे माध्यस्थ भाव कब होता है? ऐसा माध्यस्थ भाव कब होता है? तो देखो 14 नंबर की गाथा देखो, 14 नंबर का श्लोक देखो कि ऐसा माध्यस्थ भाव जो आचार्य देव कह रहे हैं वो कब उत्पन्न होता है। तो यहां कह रहे हैं ज्ञाताः दृष्टाः मेको हम सुखे दुखे न चापर ईतिदम भावनार्दाढ़ चारित्रम अथवा मतम। देखो ये बहुत 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 कठिन है परिभाषा, मतलब ये जो स्टेज है सम्यक चारित्र की बहुत कठिनता की है, इसीलिए अंत में कहा चारित्रम अथवा मतम, और एक जगह आया है चारित्रम अथवा परम शब्द आया है।
ये जो मतम दिख रहा है ना, माना गया है, ये शायद यहां पे गलत प्रिंट हुआ है इंग्लिश की कॉपी में। एक्चुअली इसका अर्थ ये है चारित्रम अथवा परम। अर्थात क्या बोल रहे हैं यहां पे? आचार्य अकलंक स्वामी कह रहे हैं अब मैं तुमको परम चारित्र की बात सुनाता हूं। कैसा चारित्र? उत्कृष्ट चारित्र, सुपरलेटिव, एक्सलेंट, परम चारित्र। क्या है परम चारित्र? ज्ञातः, मैं सिर्फ ज्ञाता यानी जानने वाला, दृष्टा यानी मात्र देखने वाला, और कैसा? एक ओहम, मैं अकेला हूं, मैं एकमात्र हूं, और सुखे दुखे न चापरम, मुझ में सुख और दुख नहीं होते। हम कह सकते हैं क्या मुझ में सुख दुख नहीं होते हैं? अरे भैया, पूरी जिंदगी सुख दुख में ही जी रहे हैं हम, इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना है और बोलना है हमें सुख दुख नहीं है। सारी जिंदगी सुख दुख में ही तो बिता रहे हैं हम। संसारी जीवन की तो यही तो कला है, यही तो स्थिति है। लेकिन यहां जिन्हें परम चारित्र होता है, वहां पे आचार्य देव कह रहे हैं इन्हें सुखे दुखे न चापरम, मुझ में सुख और दुख नहीं है, ऐसी ईतिदम भावनार्दाढ़, ऐसी भावना जहां प्रगाढ़ हो गई है, ऐसी भावना जहां बहुत दृढ़ता को प्राप्त हो गई है, यानी अपने ही अंदर में वे जो स्थित हैं, उसको यहां पे आचार्य देव कह रहे हैं हम चारित्रम परम। यही परम चारित्र है, यही सच्चा चारित्र है, उत्कृष्ट चारित्र यही है। मतलब क्या समझे? अभी हमने सिर्फ इसका शब्दार्थ समझ लिया। अब भावार्थ के रूप में ये दोनों ही गाथाएं हैं, इन दोनों ही गाथाओं का अर्थ हम क्या समझेंगे? तो देखो, यहाँ पे जो चारित्र जो बताया जा रहा है, वह चारित्र उत्कृष्ट स्वरूप का चारित्र बताया जा रहा है। उत्कृष्ट चारित्र का स्वरूप जो है वह सिद्धांत ग्रंथों में 8वें गुणस्थान से आगे शुरू होता है, तरतमता की अपेक्षा। मतलब कैसे? देखो, पहले से तीसरे गुणस्थान में चारित्र है ही नहीं, चौथे गुणस्थान में श्रद्धा उत्पन्न हुई, श्रद्धा के बलबूते पर हम कुछ सद आचरण का काम करने लग गए हैं, लेकिन वहां सम्यक चारित्र है क्या? चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र है क्या? कोई ऐसा मानता? नहीं। हाँ, थोड़ा है। हाँ, देखो ये थोड़ा है बोल रहे हैं, इसलिए प्रश्न पूछा मैंने। अभी ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना। चौथे गुणस्थान में चारित्र है क्या? अगर तुम चौथे गुणस्थान में चारित्र मानते हो तो पंचम गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में क्या अंतर रहा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। चौथे और पांचवे के अंदर चारित्र नहीं है। चौथे में नहीं है ना? चारित्र छठे से शुरू होता है। नहीं, चारित्र पंचम से शुरू होता है। पंचम से शुरू होता है। पर जो प्रतिमा लेते हैं वो तो चतुर्थ में शुरू होती है, तो प्रतिमा के साथ में चारित्र भी आता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, प्रतिमा पंचम से शुरू होती है, चौथे से किसने बताया आपको? अच्छा, मुझे लगा चौथे से यू स्टार्टेड एंड व्हेन यू एंड इज पंचम गुणस्थान। ओके, देखो, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। सबको पता है ना? चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है उसका? जिसके पास असंयम है, जिसके पास संयम नहीं है उसको कहते हैं अविरत। उसके पास विरति नहीं है, इसीलिए उसको अविरत कहा। और अविरत इसीलिए उसको कहा क्योंकि उसका मात्र श्रद्धा है, उसके पास दो रत्न है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है उसके पास सम्यक चारित्र नहीं है।
सम्यक चारित्र की उत्पत्ति कब होगी? जब वह पंचम गुण स्थान में जाकर व्रतों का अंगीकार करेगा, अर्थात दर्शन प्रतिमाधारी बनेगा। देखो ये चीज जो है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय इतना महान ग्रंथ था और ये श्रावकाचार का ही ग्रंथ था, लेकिन देखो उस श्रावकाचार के भीतर आचार्य देव ने प्रतिमाओं का वर्णन नहीं किया, इसीलिए अपन ने उनको लिया नहीं वहां पे। प्रतिमाओं का वर्णन कहाँ है? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी के भीतर है, अलग चैप्टर ही बनाया है उसका। तो ये विषय जो है वो पुरुषार्थ सिद्धोपाय के भीतर नहीं आया। तो चौथे गुणस्थान में क्या है? चौथे गुणस्थान में जिसकी श्रद्धा विपरीत हो गई थी, मिथ्या हो गई थी, वो सु हो गई, सही हो गई, जिनेंद्र देव के मत के अनुसार हो गई, इसलिए उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको। अब प्रश्न है, चौथे में चारित्र कैसे हो सकता है? तो कोई कह रहे हैं होता है, अभी प्रदीप भाई ने कहा थोड़ा होता है, और एक ने कहा, अपने रसिक भाई ने कहा होता नहीं है। तो इसको कैसे समझे हम? देखो, सम्यक दर्शन को दूषण लगाने वाले जो कार्य हैं, उन कार्यों को नहीं करना, यही चौथे गुणस्थान का चारित्र है। अभी थोड़ा अपन डेप्थ में जा रहे हैं थोड़ा। इस बात को आचार्य कुंद देव ने चारित्र प्राहुड़ ग्रंथ के भीतर कहा हुआ है और उसको नाम दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र। प्रदीप भाई नोट कर लेना, क्या नाम दिया? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और उसी आचार्य कुंद देव ने चारित्र का दूसरा नाम दिया संयमाचरण चारित्र। इसीलिए जिनको ऐसा लगता है कि चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र है, तो वो बात अपने श्रद्धांत से निकालो। संयमाचरण चारित्र, जो सम्यक चारित्र है, वह संयमाचरण चारित्र की बात करता है। कभी अपन अष्टपाहुड़ ग्रंथ का अगर स्वाध्याय करेंगे, ये विषय बहुत बड़ा है, अपन ले सकते हैं, लेकिन अब मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, ब्रीफ में बता रहा हूं। तो चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं है, इसीलिए उसको अविरति है, नाम ही वही गुणस्थान का नाम है, अविरत सम्यक दृष्टि। तो चारित्र कहां से शुरुआत हो गई? पंचम गुणस्थान से चारित्र शुरू हो गया। तो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जब बन जाता है, अब देखो उसमें भी भेद है। अब ये पूरा चारित्र का विषय हो जाएगा, अलग हो जाएगा श्रावकाचार का, इसलिए ऊपर अपन जाते नहीं हैं। अब इसके भीतर एकादश प्रतिमा यानी 11 प्रतिमाएं, 1 से लेकर 11 ही प्रतिमाओं के भीतर स्थित जो श्रावक हैं वे सभी व्रती हैं। अब उनमें भी भेद बनते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्तम, वो बात अलग है, लेकिन ये सभी चारित्र वाले कहे जाएंगे। यानी कैसे? इसको कहा देश विरत। देश विरत मतलब क्या? पूरा चारित्र को इन्होंने धारण नहीं किया, लेकिन कुछ अंश में, कुछ मायने में इन्होंने चारित्र को धारण किया हुआ है। क्योंकि पूरा चारित्र अगर मानेंगे तो मुनि के चारित्र में और श्रावक के चारित्र में क्या अंतर रहा, ऐसा प्रश्न आएगा। इसीलिए छठवें गुणस्थान में जो मुनियों का चारित्र होता है उसको कहते हैं सकल चारित्र। इसको दूसरा नाम है आगम का प्रमत संयत गुणस्थान, यानी प्रमत संयत चारित्र। यह षष्ठम गुणस्थान में होता है। तो ऐसा जो चारित्र है यहां पे चौथे में नहीं है। अभी देखो यहां जिस चारित्र की बात अकलंक आचार्य देव कह कर रहे हैं, वो चारित्र अभी हमने जो बात किया वो चौथे में तो है ही नहीं, पंचम में भी नहीं घटित होता, छठवें में भी घटित नहीं होता, सप्तम से थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है अध्यात्म ग्रंथों के अनुसार। और इसकी चरम सीमा कहां बनती है? तो कहते हैं 10वें गुणस्थान के अंत में, यानी 12वां और 11वां जो गुणस्थान है उस गुणस्थान की बात यहां 14वें श्लोक के भीतर आचार्य कह रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, जो अपन ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करके आए थे,
उसमें चारित्र का स्वरूप जो उन्होंने कहा था वो भी यही कहा था। कैसा चारित्र? उत्कृष्ट चारित्र। परम चारित्र शब्द है, शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि हमने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। व्याकरण का अपने पास अगर ज्ञान नहीं है, हम कुछ न कुछ पढ़ के कुछ न कुछ गलत अर्थ समझेंगे और लोगों को समझाएंगे और दूसरे लोगों को ठिकाने लगाएंगे, और लगेगा कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन गलत प्रभावना चल रही है सब। तो यहां क्या कह रही हैं? ये बोल रहे हैं उत्तम चारित्र। उत्तम चारित्र कहां घटित होता है? तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं सकल कषाय विमुक्तम। देखो सकल कषाय कहां समाप्त होते हैं? 10वें गुणस्थान तक कषाय रहती है ना। तो सकल कषाय की सप्तता जो खत्म होना है वो कहां रहेगा? 11वें और 12वें गुणस्थान में। उसे कहते हैं छद्मस्त वितराग गुणस्थान। तो ऐसे गुणस्थानों में स्थित जो मुनिराज हैं उनके कौन सा चारित्र होता है? परम चारित्र होता है, उत्कृष्ट चारित्र होता है। और वह कैसा होता है? तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं विशद उदासीन आत्मरूपम तत्। वो विशद होता है, उदासीन होता है, अर्थात वीतराग चारित्र में जो स्थित हैं, आत्मा के स्वरूप रूप जो हैं, वे ऐसा उत्कृष्ट चारित्र को वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसा चारित्र अब इस पंचम काल में घटित होता है क्या? बहुत सिंपल उत्तर है इसका, नहीं नहीं नहीं। हो ही नहीं सकता। ऐसा चारित्र का धारी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर क्यों बता रहे हैं ये सब? अरे अपने को गोल तो पता होना चाहिए कि अपना गोल क्या है। अपनी श्रद्धा और ज्ञान को विपरीत श्रद्धा और ज्ञान से हटाकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान पर कर अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो उत्कृष्ट की बात पहले करेंगे, और उत्कृष्ट तक जाने तक स्टेजेस रहते हैं। तो उस स्टेजेस में हमारे फिर कौन से हैं? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक भी आ गए हैं, क्योंकि उनको चारित्र नहीं होता ऐसा नहीं बोल सकते हम, बिल्कुल चारित्र घटित होता है। पंचम गुणस्थान से चारित्र की शुरुआत है। चरणान योग के अनुसार से पंचम गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ये। और यहां पे जिस चारित्र की बात कर रहे हैं वह चारित्र, दूसरा शब्द है इसका वीतराग चारित्र। तो इसके ऊपर से हम क्या समझें? देखो चारित्र को अलग अलग प्रकार से गिनाया है, मतलब जहां जहां जो भी अपेक्षित रूप संदर्भ हैं उन संदर्भों को लेकर आचार्यों ने चारित्र की परिभाषाएं बताई हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के भीतर आने वाला चारित्र 5 प्रकार का बताया है। देखो जिनको स्वाध्याय है ना उन्हीं को ये समझ आएगा, और अपन बहुत साल से अब स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए ये सब विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। तत्वार्थ सूत्र के भीतर 5 प्रकार का चारित्र कहा, फिर प्रवचन सार जी के भीतर 2 प्रकार का चारित्र कहा, फिर उसके बाद चरणानुयोग ग्रंथों में अनेक और 2 प्रकार का चारित्र कहा। तत्वार्थ सूत्र का चारित्र कौन सा है? तो कहते हैं सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्म संप्राय, 5 चारित्र के प्रकार सब मुनियों को घटित होते हैं, श्रावकों को घटित नहीं होते हैं सब। फिर यहां पे अपन प्रवचन सार जी की शरण में जाते हैं, वहां आचार्य कुंद देव कहते हैं चारित्र 2 प्रकार का होता है। कौन सा चारित्र? तो कहते हैं एक शुद्धोपयोग रूप चारित्र और दूसरा एक शुभोपयोग रूप चारित्र। उसी का दूसरा नाम क्या है? तो कहते हैं एक सराग चारित्र, दूसरा वीतराग चारित्र। शुद्धोपयोग रूप चारित्र होता है वो वीतराग चारित्र होता है, और जो शुभोपयोग रूप चारित्र होता है वह सराग रूप में होता है, क्योंकि राग से सहित होता है वो। अच्छा, अब चरणानुयोग के ग्रंथ के शरण लाओ तो वहां पे चारित्र किस प्रकार का है? तो बोलते हैं धर्म की अपेक्षा से 2 प्रकार का है, मुनि धर्म, श्रावक धर्म। और धर्म का अर्थ यहां चारित्र लेना है। क्यों? आचार्य कुंद देव ने कहा चारित्रम खलु धम्मो। धर्म क्या है? धर्म की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं आगम के भीतर। एक परिभाषा क्या कही आचार्य कुंद देव ने? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति निदिठो। अरे भाई चारित्र ही साक्षात धर्म है, चारित्र को छोड़ के और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो ये जो चारित्र है वह शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ऐसे 2 प्रकार का कहा उन्होंने प्रवचन सार जी के भीतर।
और फिर नए की अपेक्षा से पूछो तो चारित्र कौन से प्रकार का है, तो नए की अपेक्षा से वापस दो प्रकार हो गए, एक व्यवहार चारित्र और दूसरा निश्चय चारित्र। देखो, इस प्रकार से आपने चारित्र का अवलोकन किया सभी ग्रंथों के माध्यम से, तो आपको पता चलता है कि अलग अलग अपेक्षाओं को धारण करके अलग अलग रूप से चारित्र को कहा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चारित्र सब अलग अलग हैं, उनका स्वरूप तो एक ही है, लेकिन कहने की पद्धति के कारण और उनके भीतर जो ग्रहण किया हुआ है अर्थ है, अपेक्षा है, इन अपेक्षाओं के कारण ये सब भेद बने हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है तो बोलना हाँ मेरे को। तो इसके भीतर हाँ सम्राट जी, हे सुख चारित्र इज सम्यक चारित्र और नहीं? हाँ, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र। तो यहां पे जो सम्यक चारित्र की बात आचार्य देव कह रहे हैं, अब वो चारित्र कौन सा नहीं है? व्यवहार चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, सराग चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, श्रावक के चरित्र की बात नहीं कर रहे हैं, शुभोपयोग की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां स्वरूप संबोधन के भीतर 13 और 14 गाथाओं के माध्यम से जो चारित्र का कथन किया जा रहा है, वह चारित्र है निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, शुद्धोपयोग रूप चारित्र। उस चारित्र की बात कर रहे हैं और इसी को परम चारित्र कह रहे हैं। उत्तम चारित्र यही है, उत्कृष्ट चारित्र यही है। और ऐसे धारण करने वाले कौन होते हैं? मुनिराज। और ऐसा उत्कृष्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मोक्ष का साक्षात कारण यही है। क्या समझें? किसी के पास सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, लेकिन चारित्र उसने ग्रहण नहीं किया, कभी मोक्ष जा सकता है? वो कभी नहीं जा सकता, 3 काल में नहीं जा सकता। और जिनके पास दर्शन नहीं है वो कितने भी चारित्र करें, उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि ज्ञान पंगु है तो चारित्र भी पंगु है। ज्ञान पंगु क्यों है? तो दर्शन पंगु है, इसलिए ज्ञान पंगु है। तो इस प्रकार से देखो, इस रत्नत्रय के भीतर इस जाति का संबंध है, कारण कार्य रूप संबंध है। और दर्शन ज्ञान जहां पे महत्वपूर्ण है, सम्यक चारित्र तो दर्शन ज्ञान पूर्वक ही घटित होगा। और उसी की बात यहां पे आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई मैं उत्कृष्ट चारित्र की बात कर रहा हूं। और उस उत्कृष्ट चारित्र की बात जो है वह कहाँ घटित होती है? तो कहते हैं ऐसे उपरिम उपरिम गुणस्थान के भीतर घटित होती है, नीचे नीचे में नहीं घटित होती है। तो अब अपन 13 की तरफ आते हैं और 13 को भी वापस पढ़ लेते हैं, है ना। 13 14 दोनों साथ में हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कह लिया कि ये माध्यस्थ भाव, इसीलिए मैंने कहा ये बहुत कठिन है माध्यस्थ भाव। सिर्फ बोलने की चीज है, हम में समता है, हम में माध्यस्थ है, हम में राग द्वेष नहीं है। अरे राग द्वेष से खचे खच पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं हम। राग द्वेष के बिना एक सेकंड पल नहीं गुजरता अपना। और अब सुनो, अब कोई पूछेगा इसको सुन के को 13वें गुण अपने 6वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में क्या नहीं है? क्या मध्यस्थ भाव नहीं है क्या? तो देखो बहुत अंश कम है वहां पे। प्रशम भाव जो प्राप्त होता है, वैसे तो सम्यक दृष्टि को भी प्रशम भाव प्राप्त होता है, लेकिन यहां पे जो माध्यस्थ भाव कह रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। माध्यस्थ भाव कैसा माध्यस्थ भाव? याद करो महाभारत का प्रकरण, जहां पे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, चारों ही मुनिराज, 5 ही मुनिराज अपने जप में, तप में, ध्यान में स्थित थे। सभी क्या थे? वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन के धारी थे, 5 ही भाई। तो उनमें से उत्कृष्ट चारित्र जिनको प्राप्त हुआ तो 3 पहले भाइयों को, और उन्होंने मोक्ष को साध लिया। उनके ऊपर आपको पता है ना कथा, क्या क्या वेदनाएं दी उनको, उनके शरीर को कितने दुख हुए, कितना उनको मतलब सताया गया, फिजिकल टॉर्चर ऑफ इमेंस स्केल, वी कांट इवन इमेजिन। तो उसमें यहां बोल रहे हैं माध्यस्थ भाव है, तो उसमें बोल रहे हैं कि मुझे में सुख और दुख नहीं है। ऐसा जो चारित्र घटित होता है
तो कह रहे हैं वैसा चारित्र जो है उसको यहां पे परम माध्यस्थ भाव अर्थात परम चारित्र, और इसी आचार्य देव ने वही भाव पकड़े हैं जो आचार्य कुंद देव ने कहे हैं, क्योंकि पहली गाथा के भीतर माध्यस्थ भाव को वो चारित्र कह रहे हैं। प्रवचन सार जी के भीतर भी यही कहा हुआ है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निदिठो। चारित्र ही धर्म है, और धर्म क्या है? कहते हैं जीव का समता रूप परिणाम माध्यस्थ भाव, यही चारित्र, यही धर्म है, और यह धर्म ही चारित्र है। अर्थात क्या है? शब्दों को बताने की पद्धति अलग अलग है, लेकिन भाव सब वही हैं। तो अब निचले वाले गुणस्थान में जो चारित्र घटित होता है वो कैसा चारित्र है भाई? तो देखो, उसको कहते हैं सराग चारित्र, उसको कहते हैं व्यवहार चारित्र। तो इसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको धारण किए बिना निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, शुद्धोपयोग चारित्र कभी 3 काल में प्रकट नहीं होने वाला है। तो सामान्य रूप से चारित्र की जो परिभाषा बताई है वह चारित्र क्या है, क्योंकि यहां तो उत्कृष्ट परिभाषा बताई। अब आपको किसी ने पूछा भाई सम्यक दर्शन क्या है, तो आप बोल दोगे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे। सम्यक ज्ञान क्या है? तो यथावत रूप से वस्तु स्वरूप को जानना, कम नहीं जानना, ज्यादा नहीं जानना, जैसा है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। अब किसी ने पूछा सम्यक चारित्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताइए क्या प्रश्न है और क्या उत्तर दोगे आप? समता भाव रचना और राग के सिवाय समता भाव। बहुत बढ़िया। तो एक उत्तर ये हो गया समता भाव की प्राप्ति करना, क्योंकि अपन वहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो अब किसी ने पूछा समता भाव में आ गया मैं, ठीक है, मैं समता भाव में आ गया क्योंकि मैंने अभी पद्मासन में डाल के मैं ध्यान में बैठ गया, पद्मासन किसी कोई व्यक्ति, तो उसको चारित्र है क्या? नहीं। तो इस परिभाषा में प्रॉब्लम क्या है? माध्यस्थ भाव जो है इट इज द इंडिकेटर ऑफ इंटरनल डिस्पोजिशन ऑफ अ योगी। ये आंतरिक सभी चीजें जो बताई जा रही हैं ये आंतरिक मापन है, बहुत उत्कृष्ट रूप से अंतरंग रूप से घटित होने वाला चारित्र है। तो आपको जब पूछा जाएगा कि भाई सम्यक चारित्र क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? जिसको हाँ जी बताइए, बोलिए, एक एक बोलिए। Sorry, Jinesh, I was saying चारित्र should be अपने स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप में स्थित होना, ये भी एक परिभाषा है, ठीक है। और तो स्वरूप में स्थित होना मतलब क्या? कोई ध्यान में बैठ गया तो स्वरूप में स्थित हो गया, उसको चारित्र प्राप्त हो गया? नहीं, सम्यक चारित्र उसको बोलेंगे जिसमें मतलब वे और श्रद्धा तो है लेकिन अभी संयम नहीं हुआ है। हाँ, संयम को ग्रहण करना है। वेरी गुड आंसर। देखो, चारित्र की जब बात करोगे तो आपको संयम को ग्रहण करना है, और संयम को ग्रहण करने के लिए चारित्र की परिभाषा जो समझ में आती है अपने को, भाई सम्यक चारित्र क्या है, तो आचार्य अपन ने द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया था। द्रव्य संग्रह के भीतर भी ये विषय बहुत अच्छी तरह से आया था। 2 प्रकार का चारित्र वहां कहा, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, दोनों ही जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कहे हुए हैं। तो चारित्र की परिभाषा वहां क्या आई समझने लायक? तो वहां कहा असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम। क्या सुंदर परिभाषा बताई आचार्य देव ने। क्या कहा? अशुभ से निवृत्ति लेना और शुभ में प्रवृत्ति करना ही चारित्र है। मतलब क्या? संयम को ग्रहण किया, व्रत, समिति, गुप्ती, अनुव्रत, महाव्रत, इन सबको ग्रहण किया, ये भी तो चारित्र है कि नहीं? तो ये जहां घटित होते हैं वहां चारित्र बहिरंग रूप से माना जाएगा। I just want to make sure the distinction between the two.
आपने जो पहले के उत्तर दिए वो नेसेसरीली गलत उत्तर नहीं थे, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से जो सच्चा चारित्र होता है वो माध्यस्थ भाव सहित ही होता है, जो आपने अभी तक डिस्कस किया, चारित्रम खलु धम्मो। लेकिन उसको पाने के लिए कंडीशन क्या है? व्रतों के बिना, समिति के बिना, गुप्ति के बिना, संयम के बिना, परिहार के संयम के बिना, पंचेंद्रिय विजय कषाय के बिना, इन सब चीजों को करे बिना कोई माध्यस्थ हो सकता है क्या? 3 काल में नहीं हो सकता। इसीलिए तो हमारे मुनिराजों ने क्या किया हुआ है? सकल चारित्र को धारण किया है, अर्थात संयम को धारण किया हुआ है। तो संयम का दूसरा नाम चारित्र है, और वह क्या है? तो कहते हैं अशुभ मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, अर्थात राग द्वेष अशुभ रूप, उनसे निवृत्ति लेना और शुभ में प्रवृत्ति करना, सो चारित्र है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम, इसे तुम चारित्र जानो। ऐसा किसने कहा है? जिण भणियम दू, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा हुआ है। द्रव्य संग्रह की गाथा है ये। तो इसके सहित अर्थात महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, 12 अनुपेक्षाएं, 10 धर्म, इन रूप से संवर को जो परिणामान रूप से प्राप्त होता है, उनके ही ऐसे चारित्र घटित होते हैं जो परम रूप से कह रहे हैं, माध्यस्थ भाव से। तो निचली अवस्था में नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहां अपन उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं अपन। हमारे मुनियों को भी होता है, किसी अपेक्षा से समता भाव उनमें भी घटित होता है, क्योंकि चारित्र है वहां। व्रत, समिति, गुप्ति सब इन्होंने धारण कर लिए हैं। पंचम काल में आपने जो मुनिराज जो दिखते हैं, पहले होके गए हैं, इन सब में चारित्र है, सम्यक चारित्र पाया जाता है। तो किसी अपेक्षा से उनमें कैसा है? उनमें किसी अपेक्षा से उनमें भी माध्यस्थ भाव है, स्पेशली जब वो सामायिक में स्थित हो जाते हैं, वो माध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते हैं। सामायिक का काम ही यही करना है, समता भाव को धारण करना है। अब देखो, अपन है और मुनि को कंपेयर करो। अपन, किसी ने आया और अपने को किसी ने गाली दे दी, क्या होगा? अपनी आंखें लाल हो जाएगी, अपने को गुस्सा आएगा, और फिर अपन भी क्या करेंगे? उत्तर देंगे, उसको भी गाली देंगे, या फिर तिरछी आंख दिखाएंगे, या फिर गुस्सा बहुत ही आ गया तो एक कान के नीचे मारेंगे, बजाएंगे उसको। तो ये समता थोड़ी हुई। अब ऐसा ही प्रकरण मुनिराज में घटित करो। मुनिराज के साथ में अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? वो माध्यस्थ भाव स्वीकारेंगे, वो कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं उनके प्रति वे माध्यस्थ को भाव को प्राप्त होते हैं। वो माध्यस्थ भाव अलग है, मतलब निचले वाला है वो। और यहाँ पे माध्यस्थ रूप जो भाव कह रहे हैं सम्यक चारित्र के भीतर, ये उत्कृष्ट वाला है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? पंचम गुण स्थान से संयम की प्राप्ति होते ही धीरे 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 तरतमता रूप से ये सब भाव बढ़ते हैं, और ऐसी उत्कृष्ट अवस्था फिर कहाँ प्राप्त हो गई? 11वें 12वें गुण स्थान के भीतर जाके वहां कंप्लीट होता है सब। ये आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यहां आचार्य देव ने उत्तम चारित्र की परिभाषा यहां बताई है। अब कोई बोलेगा, अरे हमने तो सुना था कि चारित्र में अनुव्रत होते हैं, मुनियों के महाव्रत होते हैं, फिर समितियां होती हैं, फिर गुप्तियां होती हैं, अनेक प्रकार के तप करते हैं, पालन कर, तप का प्रकरण अगले आएगा। इनको तो यहां पे बताया नहीं चारित्र। वे भी चारित्र हैं, वे व्यवहार चारित्र हैं। उनके बिना तो ये जो बता रहे हैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो शास्त्रों का अर्थ हमें ग्रहण करना है वह पूर्वापार दोष से रहित ग्रहण करना है, अपेक्षाओं को समझते हुए ग्रहण करना है। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि यद्यपि यहां पे लिखा नहीं है, उत्कृष्ट चारित्र की, उदासीन रूप चारित्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो बाकी के जो महाव्रत रूप की जो क्रिया है उन्होंने यहां पे बताई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है ना। तो देखो इस प्रकार से यहां पे श्लोक नंबर 13
और श्लोक नंबर 14 के भीतर अभी जो उपाय जो कह रहे हैं वो किसके उपाय हैं? आत्मोपलब्धि के उपाय, अर्थात सुख की प्राप्ति के उपाय यहां कहे जा रहे हैं। अब इसी के भीतर आज 14वां श्लोक है ना, ये आगे के 10-11 श्लोक जो बचे हुए हैं ये सब इसी के ऊपर अब आगे चलेंगे। और अलग अलग रूप से आचार्य देव जो यति हैं अर्थात जो महान साधक हैं, जो मुनिराज हैं, उनकी दशाएं क्या क्या होती हैं, अंतरंग उनका चारित्र कैसा होता है, बहिरंग चारित्र कैसा होता है, वे कैसे उसका पालन करते हैं, इसका सारा निरूपण इसके भीतर आएगा, है ना। तो चलिए अभी अपना समय यहाँ हो गया है, तो अपन अभी विराम लेते हैं और इसके संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 5 मिनट के लिए अपन कर लें। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।